इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन की कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to each and everyone who has joined us today for Business Opportunity with Chai webinar series. I, Archana Sharma, along with entire team of Franchise India, welcomes you to 279th edition of this web series. Franchise India is 23 years old company which is helping all international and national brands to expand their business with our 80 plus offices. And we have 275 consultants who is helping day in, day out all investors in getting the business suggestions from our side so that you take a conscious and informed decision of taking franchise for you and your family. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. During the course of the webinar, they'll be sharing their insights, their suggestions with each one of us so that we take a right decision. And today, the brand which Franchise India team is representing in front of each one of you is Jahangir Motors. Yes, the brand from Shriram APL Group, established in 1992, is a well-established brand name in marketing. They are known for their electric mobility solutions, and they support Made in India campaign by our respected Prime Minister, Mr. Modi. They have already sold 50,000 plus electric auto vehicle and cargos in market, and they have 160 plus dealers network that talks about their reach and presence. And with this introduction, I formally welcome and invite Mr. Rajesh Sharma, who is the MD of Jahangir Motor, along with Mr. Karthik Sharma and his team to talk about this great opportunity. Thank you so much, Rajesh sir. आज हमें join करने के लिए. But before we formally invite and start the PPT, we would like to understand your entire journey. Over to you, sir. Karthik, can you start? Can I start? Yes, please, sir. See, basically, Jahangir Motors has started in the year of 2015, and Jahangir Motors has started with the backbone of Shriram Autotech Private Limited, and Shriram Autotech Private Limited is a 30 years old company, which is a sheet metal and plastic molding manufacturer for the brands like Maruti, Suzuki, Honda, Hero Honda, and we have made many components for that brand. तो मेरे फादर ने ये कंपनी 20 साल पहले शुरू करी थी
गुड़गांव में, और उसी की बैकबोन पे हमने जांगड़ मोटर स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह ये शुरू से ही 30 साल पहले से ये सारे आते थे कि ये मारुति कंपनी एंड सुजुकी कैसे अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, कैसे सेल आउट करती है। सो उसी क्वालिटी को हमने बेस बना के प्रोडक्ट्स अपने सारे लॉन्च करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री व्हीलर्स। हमने 2015 में सबसे पहला थ्री व्हीलर जो कि मेक इन इंडिया था, 80%, उसको फाइनेंस करवाया बैंक से, उनको मोदी जी एंड अमित शाह जी के थ्रू लॉन्च करवाया, उनका ड्राइवर लाइसेंस बनाया गया, व्हीकल प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाया गया, एंड ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने सबसे पहला व्हीकल लॉन्च करा। आज 2020 में हम 50,000 से एक्चुअली में 70,000 से ज्यादा व्हीकल बेच चुके हैं, एंड हमारे 150 डीलर नेटवर्क है। हमारे जितना भी गवर्नमेंट बैंक होता है वो हमारे डीलर्स को सपोर्ट करते हैं एंड यूजर को फाइनेंस करवाने में, आरटीओ हमें अच्छा सपोर्ट करते हैं, एंड हमारे बहुत सारे ऐसे पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम 2022 से पहले हम लॉन्च करने वाले हैं, जैसे हाई स्पीड ऑटो, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। अभी हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में भी डील कर रहे हैं जो कि लो स्पीड है, बट हाई स्पीड हम 2022 तक हम लॉन्च करने वाले हैं। एंड अभी ये दो मॉडल से जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये दो मॉडल से हम अभी 15 स्टेट्स में तो हम अभी वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड विजय। हमारे हाई स्पीड थ्री व्हीलर्स भी अभी पाइपलाइन में हैं जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाएंगे, एंड 3 आवर्स में ये पूरा चार्ज हो जाएंगे, जिससे कि जो एंड यूजर होगा उसको काफी फायदा होएगा इससे। एंड इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो 5 पैसा पर किलोमीटर होती है, जो कि गैसोलीन व्हीकल से बहुत ज्यादा कम है। हमारे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में आने वाले, जैसे बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, जैसे हम मॉल्स के बाहर या किसी सोसाइटी की पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन डिप्लॉय करना। स्कूटर्स एंड स्कूटीज तो हम अभी डील कर ही रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमने ड्रीम देखा था 2016 में, इसको हमने हाईपॉड के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हमने वही सारे फीचर्स दिए थे जो एक एंड यूजर को एक लग्जरी कार में मिलते हैं, जैसे वीडियो स्क्रीन, एसी, एयर कंडीशन, अंदर म्यूजिक सिस्टम, एंड प्रॉपर एक कैबिन बना के। तो इसको, दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक मॉडल, तो ये भी हम 2022 में प्लान कर रहे हैं डिप्लॉय करने की मार्केट में। तो ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट मॉडल होएगा जो कि अभी थ्री व्हीलर की कैटेगरी में किसी के पास भी नहीं है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट स्लाइड विजय। हम अभी 18 स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं। हमारे डीलर 18 स्टेट्स में, सॉरी 16 स्टेट्स में 150 प्लस डीलर्स हैं हमारे, जो कि एक्सक्लूसिवली जांगीर के प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये क्राइटेरिया होता है हमारा, पहले ऑर्डर, परचेज ऑर्डर आता है हमारे पास, फिर प्रोडक्शन में विद इन 4 to 5 डेज हम सीएनएफ को डिलीवरी करते हैं। सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर एक एरिया, जैसे राजस्थान का, फॉर एग्जांपल राजस्थान का सीएनएफ जयपुर के डिस्ट्रीब्यूटर एंड उदयपुर के डिस्ट्रीब्यूटर को व्हीकल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देन वो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने स्पेसिफिक रिटेलर के पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड एंड यूजर फिर हमारे रिटेलर से रिक्शा परचेज करता है, जहां से वो अपनी सर्विस भी ले सकता है। तो बेसिकली रिटेलर्स हमारे रिक्शा सेल करते हैं एंड वो सर्विस सेंटर मेंटेन करते हैं, जो कि जांगीर का स्पेसिफिक, जांगीर का एक स्टैंडर्ड सर्विस सेंटर होता है एंड स्टैंडर्ड लेआउट होता है हमारे शोरूम का। तो ये इस चीज ऐसे वर्क करती हैं सारी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। ये मोदी जी ने हमारे 21,000 व्हीकल डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाराणसी में। सो वाराणसी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उन्होंने ये किया था। ऐसे ही एक अमित शाह जी के थ्रू हमने पहला व्हीकल रजिस्टर्ड करवाया था पैन इंडिया में, जिसमें नंबर प्लेट लगी थी, इसमें ड्राइवर का लाइसेंस बना था, व्हीकल का इंश्योरेंस हुआ था, व्हीकल किसी को हिट करता है तो इंश्योरेंस में ये सारी चीजें हमने रखी थी। एक प्रॉपर ऑटोमोबाइल की ऑटोमोबाइल के स्टैंडर्ड में फिर हमने व्हीकल सेल आउट करना शुरू किया था। तो ऐसे ही हमारी ये शुरू की जर्नी रही है, एंड मेक इन इंडिया के नाम से हमने ये सारी चीजें प्रमोट करी थी। नेक्स्ट स्लाइड।
हमने काफी सारे शोज भी कर रहे हैं। ये कोलकाता का शो है, कोलकाता में, इंडिया में, बैंगलोर में, गुजरात में हमारे ये शोज चलते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Basically, this is the roll-up plan for all the 16 states. अभी कोई भी स्टेट्स में फुल पोटेंशियल से अभी व्हीकल नहीं सेल आउट हो रहे हैं। अभी तो बहुत ज्यादा डिमांड होना बाकी है अभी इसकी। अभी काफी सारी डिमांड आएंगी काफी सारे स्टेट्स में इसकी। तो बेसिकली ये तो सारी चीजें, बट हमारा जो मेन फोकस है वो है कि हम जैसे मारुति की गाड़ी बिकती है, जैसे होंडा की गाड़ी बिकती है, वैसे ही थ्री व्हीलर मार्केट में बिकना चाहिए। वैसे उसी ट्रस्ट के साथ एंड यूजर को वो थ्री व्हीलर परचेज करना चाहिए। उसी ट्रस्ट के साथ जो मारुति के डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो थ्री व्हीलर के या इलेक्ट्रिक के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सके और एक अच्छे स्टैंडर्ड में काम हो सके। हमें नेक्स्ट स्लाइड। So basically, this is the investment and wait a second. For this is the dealers layout. ये हमारे जयपुर जितने भी डीलर्स होते हैं हमारे, वो स्टैंडर्ड वे में ब्रांडिंग होती है। वहाँ पे एक व्हीकल पार्क होने की जगह होती है, तो ये स्टैंडर्ड है। दिस इज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हमने इसमें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में बहुत अच्छी ग्रोथ हमने पहले भी देखी है और हमने आगे फोरकास्ट भी करी है, जिसमें आप देख पाओगे कि इसमें कम कॉस्ट में हम ज्यादा सेल आउट कर सकते हैं। कि इवन अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक ट्रैक्टर इंडस्ट्री से, तो ट्रैक्टर एक आता है 5 से 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर बेच के जो डीलर अर्न करता है, उससे हल्का सा कम ई रिक्शा बेच के करता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट सीधा 1 लाख आ जाती है। सो एज कम्पेयर टू 10 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख बहुत कम है, एंड जो मार्जिन है वो कंपेयर टू 10 लाख बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो बेसिकली 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कोई ई रिक्शा शुरू करता है, तो उसे बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा एज कम्पेयर टू ट्रैक्टर बेचने वाले डीलर्स को। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। This is the basic terms which we need to for to apply a trade certificate. Next slide. Thank you so much, Karthik ji and Rajesh ji, for coming in and for this presentation. And friends, I will also request, agar aapke koi bhi questions hai which you want to ask with respect to the business model, kindly put all your questions in the Q&A box, and we'll take it up one by one and have all the questions answered. And before I start with the questions, I'd like to thank you once again. And friends, just to reiterate, Jangid Motors is one of the leading companies in the EV evolution, and they're also manufacturers of electric 3 and 2-wheeler automotive components. It's a part of the Shriram Autotech Group, which Karthik ji just mentioned, which is also one of the most established OEM since 1992. And they started this company Jangid in about 66 years back as a dream of their organization to become one of the leading players in the EV segment. And they currently have presence in about 16 odd states, and they're looking at partnering now with credible, I would say, partners to maybe have a growth which is inorganic. And they have also been positioned as an EV company which has patented technologies, and they also come with state of the art design capabilities at the company level. And friends, if we have to talk about EV as an industry, and especially in India, it's a growing industry, which Karthik ji mentioned, and we are today at crossroads where EV will shape the future of transportation.
the center and the state governments have launched various schemes, incentives, regulations, standards to promote electric mobility in the entire country. And we're all witnessing a very big adoption from e-commerce companies, car manufacturers, app-based transportation network companies, and mobility solution providers. They've all, they have been the first ones who have entered this sector. So if I have to maybe sum up the model, this is a triple S model, which is offering sales, जहाँ पे आप vehicle sales में involve होंगे. It includes servicing and also spare parts. So this is a triple S model. And Karthik ji, I'll take some questions from the audience while I see they've all started coming up. अगर हम business model की बात करते हैं, I think we didn't spend too much of time on that slide. अगर थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी हम brief कर पाएं, एक हमारा एरिया कितना रहता है, फी स्टार्ट अ डीलरशिप वन, एंड टिपिकल आपका जो इन्वेंट्री होता है एक डीलरशिप में, व्हाट इज द इन्वेंट्री दैट वी कीप, एंड इन्वेंट्री का मिक्स क्या होता है. इफ यू वांट यू कैन पुट दैट स्लाइड बैक, अगर आप चाहते हैं तो. दैट वाज द स्लाइड, आई थिंक दैट वाज द थर्ड लास्ट स्लाइड. हाँ जी, द नेक्स्ट स्लाइड. This one. See, this slide we have prepared. हमने 12 vehicles per showroom consider किए इस slide में. Okay. So basically CNF के लिए inventory level अलग होता है, distributor के लिए अलग होता है, and retailer के लिए अलग होता है. हाँ जी. So CNF जो कि एक large state handle करता है, तो उसके लिए 80 to 90 vehicles का stock होना उसके पास जरूरी है, जो कि बहुत ज्यादा चली जाती, बहुत ज्यादा एक कॉस्ट, वो इन्वेस्टमेंट चली जाती है. तो बेसिकली एक हमने ये वाला जो प्रिपेयर करा है, हमने एक रिटेलर को ध्यान में लेते हुए, जो 12 व्हीकल अपने शोरूम में स्टॉक मेंटेन करेगा 12 व्हीकल से, और 12 व्हीकल के हिसाब से ये सारी इन्वेस्टमेंट है, यही सारे रिटर्न्स है. 12 व्हीकल हमारा एक इन्वेंट्री लेवल एक मेंटेन होता है एक आउटलेट पे, एंड टिपिकल जो हमारा कॉस्ट होता है एक व्हीकल का, वो क्या हमारा कॉस्ट रहता है. और दूसरा, अगर हम मार्जिन्स भी समझें, क्या मार्जिन्स रहेंगे एक फ्रेंचाइज पार्टनर के पास, क्योंकि हम 3 मॉडल की बात कर रहे हैं. इसमें एक हमारा सेल है, सेल ऑफ व्हीकल. दूसरा हमारा सर्विसिंग, एंड वाइल सर्विसिंग माइट नॉट बी वेरी बिग कंपोनेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इतना सर्विसिंग नहीं होता है. एंड थर्ड इज योर स्पेयर पार्ट. तो ये 3 हमारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम अपना पूरा रेवेन्यू बाइफिकेट कर रहे हैं. So हमारा average cost of vehicle, what is the cost of a vehicle, and what are the margins which a franchisee would have on these vehicles? See, cost of vehicle to the end user is 1,40,000, depending on the market, starting from 1,30,000 to 1,40,000. And the cost which we are giving to CNF, suppose CNF is around 95,000 to 1 lakh rupees. So 1 lakh rupees के बाद कुछ 15,000 के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें RTO, इंश्योरेंस एंड फाइल चार्जेस एंड कोई पेपर वर्क जितना भी है, वो हम 15,000 to 20,000 में कर लेते हैं. सो रेस्ट 25,000 वो मार्जिन होता है. वो मार्जिन फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है CNF में, रिटेलर में एंड डिस्ट्रीब्यूटर में. सपोज CNF जो अपने नीचे 10 डीलर्स to 20 डीलर्स, अच्छे डीलर्स केटर करता है, तो मिलके 200 व्हीकल बेच लेते हैं, और 2,000 to 3,000 रुपीज एक CNF अपना एक कमीशन रखता है, जिसमें एक जो रिटेलर होता है फिर उसके पास ऑन हो जाता है 20,000 तक का मार्जिन. सो ऐसे ही चीजें अभी ये वर्क करती हैं मार्केट में. ओके. एंड इसमें अगर हम मैन पावर, आपने लेबर इसमें कॉस्ट लगाया हुआ है, एंड व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग इज हमारा जो ईयर 1 का सेल्स है, there's certain number of vehicle retail जो आपने एक amount लिया about 30, this is 3 crores, huh? Is that 3 crores which you put in year 1 altogether, which comes from the sale? Right. So इसमें what is the number of vehicle sales that we are projecting? हमारे almost क्या हमारा vehicle sales है जो हम project करते हैं एक साल में, and कितना time लगता है उस level को पहुंचने के लिए एक partner को? अगर मैं करंट एग्जांपल बताऊं तो जनवरी में हमारे एक डीलर ऑन बोर्ड हुआ था, जो कि अभी 24 to 25 व्हीकल इजीली सेल आउट कर लेता है पर मंथ. ओके. एंड ईयर 1 के जो हमने फोरकास्ट लिया है, वो लिया है हमने 16 व्हीकल पर मंथ का. अच्छा. ईयर 5 में जो गया है मैक्सिमम हमने 60 to 65 व्हीकल का पर मंथ के हिसाब से ये सारे डिजिट्स रखे हैं.
बट अगर मैं पर्सनल डिजिट्स दूं तो हमारे काफी सारे डीलर हैं जो 80 to 90 सेल आउट करते हैं पर मंथ एक पॉइंट से। वो कि हमने मैक्सिमम से यहाँ पे 60 रखा है, बट 80 लेवल पर मंथ के डीलर मेरे पास अभी करंटली हैं। सो इससे ये समझ में आता है कि सेल है मार्केट में, बट ग्रैब करने वाली बात होनी चाहिए कि ग्रैब कितनी हम कर सकते हैं। सो ये जो डिजिट्स लिए गए हैं ईयर 1 ईयर 2 में, इसमें हमने ज्यादा टारगेट नहीं रखा है। 16 पर मंथ से हमने 60 पर मंथ तक रखा है, जो कि एक काफी कम नंबर है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो 24 पर मंथ डीलर भी है मार्केट में, 80 to 100 व्हीकल पर मंथ बेचने वाले भी डीलर है मार्केट में। Sure. And Karthik, if I also talk, because I see a lot of questions coming on the inventory के ऊपर, because आप टू व्हीलर भी करते हैं, थ्री व्हीलर भी हम करते हैं। जो हमारा एक आउटलेट होगा उसमें इन्वेंट्री जो आपने साइज बताया 12 का, सो विल दैट बी अ मिक्स ऑफ बोथ, या ये एक इंडिपेंडेंट डीलरशिप की बात हो रही है जहाँ पे कोई अगर स्कूटर लेना चाहता है? बिकॉज आई एम सीइंग क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस जो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ थ्री व्हीलर लेना है या सिर्फ टू व्हीलर लेना है, या अगर ये दोनों ही हमारी इन्वेंट्री एक ही आउटलेट पे अवेलेबल हो सकती है। See, 12 vehicles is mandatory, is a minimum mandatory. 12 vehicles should be available at minimum selling point, a small selling point. हाँ जी। In small district basically. And एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ तो उसमें 4 सेलिंग पॉइंट होते हैं, तो 12 into 4 is that total amount of inventory that each one should be having in their outlets. तो इसमें मिक्स क्या होगा, बिकॉज हम थ्री व्हीलर भी रख रहे हैं, टू व्हीलर भी रख रहे हैं, सो आर वी सेग्रीगेटिंग कितना टू व्हीलर उसमें आना चाहिए, कितना थ्री व्हीलर का इन्वेंट्री हमें रखना है? करंटली ये सिर्फ मैं थ्री व्हीलर की बात कर रहा हूँ। टू व्हीलर्स के इस लेवल पे शोरूम्स हम अलग अलग करते हैं, बट अगर हम मर्ज करें तो कुछ 20 व्हीकल्स टू व्हीलर के रखना जरूरी होता है एंड 12 व्हीकल्स थ्री व्हीलर के रखना जरूरी होता है। और ये इसलिए भी जरूरी होता है कि हमारी मार्केटिंग टीम एग्रेसिवली मार्केट प्रमोट करती है सेकेंडरी सेल्स डेवलप करने के लिए। कि सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमारी मार्केटिंग टीम ने ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी करी, कुछ इंक्वायरीज जनरेट हुई, बट व्हाट इफ वो इंक्वायरी पूरी करने के लिए डीलर के पास मिनिमम स्टॉक ना हो, तो इसके लिए हम एक मिनिमम 12 यूनिट का स्टॉक जो है वो हर टाइम अवेलेबल करवाते हैं अपने डीलर के पास। ओके, ऑलराइट। एंड सेम 20 व्हीकल का टू व्हीलर्स का। Okay, that's helpful. And I will also take, Karthik ji, some question from the audience. And we also have Mr. Austin Rez. He wants to know, is there also an opportunity to become a CNF agent? क्या वो भी एक opportunity है जो एक partner के पास available है? क्योंकि आपका north में, especially UP, couple of states, I would say, and cities where you already have a very big penetration. So कौन से ऐसे locations या regions रहेंगे जहाँ पे CNF अगर हम दे रहे हैं तो opportunity है CNF develop करने की? बेसिकली सीएनएफ एक खुद में ही एक ऐसी डील है। सीएनएफ के लिए ना एक 80 to 100 व्हीकल का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। अगर जिस सीएनएफ के पास 80 to 100 व्हीकल का स्टॉक होएगा, तो अपने ऑटोमेटिकली जो हमारे डीलर होंगे आसपास के रेडियस में, वो उनको ही ऑर्डर देंगे, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगा। जो 80 to 100 यूनिट में इन्वेस्ट करेगा सीएनएफ, उनको हम ऑटोमेटिकली अपने डीलर्स के और उनके आसपास जितने डीलर होंगे हम उनको मेल कर देंगे कि आपका इस पॉइंट पे स्टॉक अवेलेबल है। तो उनके पास ऑटोमेटिकली इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएगी और हमारे भी एग्जिस्टिंग कस्टमर वहां पे डाइवर्ट हो जाएंगे। राइट। हाँ जी, तो इसमें जहाँ पे सीएनएफ है, कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? क्योंकि दो तरीके से देखा जा सकता है, वन वे यू ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग सेटअप जहाँ पे आपकी ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है और वहाँ पे शायद सीएनएफ नहीं है, तो सीएनएफ को डाल के हम उसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं सारी डिमांड। और दूसरा हो सकता है कि मे बी एक न्यू मार्केट है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, एंड मे बी a CNF comes in and there's a new market altogether which is developed. So if we have to put these two perspective, कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको लगता है अभी करंट डिमांड है और जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है अभी फिलहाल सीएनएफ की? मैम बिहार ऐसे स्टेट है, वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट है, असम ऐसी स्टेट है। ईस्ट का पूरा ही सीएनएफ के लिए एक जो कि 100 to 150 व्हीकल इन्वेस्ट करेगा वहां पे। हाँ जी। तो उनको हम काफी इंक्वायरीज दे सकते हैं उस स्टेज में, क्योंकि हमारे पास भी काफी इंक्वायरीज आती है। बस एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, इस वजह से वहां पे हमारे व्हीकल थोड़ा जा नहीं सकते। एंड जो 20 वाले 25 वाले जो डीलर्स होते हैं, वो उनका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा पड़ता है। बेसिकली हमारे पास डीलर है, बट
वो 25 to 30 यूनिट्स पर वो मंथ का रोटेशन लेते हैं वो। ओके सो अगर वहाँ पे CNF होएगा, सो काफी सारे CNF उनसे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे रूट हो जाएंगे। जुड़ जाएंगे। सो आप कह रहे हैं ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, पोटेंशियल है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स काफी डिफिकल्ट हाँ है, तो अगर हम CNF वहाँ पे अपॉइंट करते हैं तो आपका जो एक्सटेंड राइट डिमांड है और मार्केट है वो उनके थ्रू फुलफिल किया जा सकता है। हाँ एंड इसको रखते हुए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, which is again on the CNF, which is again asked by Mr. Austin. He says, what is the criteria for becoming a CNF agent? Is one question which I have, and इसके साथ में ये भी I think we have Mr. Mohit Vaswani. He also wants to know, if we choose to become a CNF, is marketing and making maybe or developing that territory, is that also done by the company, or there is some I would say work or obligation of a CNF also to develop that market? सी मैम, ये दोनों पैरेलली वर्क करेंगे। हमारी मार्केट, हमारी सोशल मीडिया एक्टिविटी भी चलती है, हमारी मार्केटिंग भी चलती है, हमारे पास भी काफी लीड्स आते हैं इंडिया मार्ट से, जस्ट डायल से। हाँ सो जी। वो लीड्स हमारी जो CPOC टीम होती है, जो सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टीम होती है, वो ऑटोमेटिकली उस टेरिटरी के जो डीलर होंगे उनको रूट कर दी जाएगी वो। सो सपोज कोई CNF है और उस मार्केट से हमारे पास कोई लीड आती है और हमने ऑन पेपर वो टेरिटरी CNF को कमिट कर रखी है, सो उस टेरिटरी से जितनी भी आगे डीलर्स की लीड आएगी वो हम उन्हें ही कैटर करते हैं। और ऐसे ही हमारी CPOC टीम टेक केयर करती है हमारे सारे CNF, सारे डिस्ट्रीब्यूटर का। इवन एंड यूजर की भी जो हमारे पास लीड आती है, वो भी हम उनके रिटेलर, उनके जो नियरेस्ट आउटलेट होएगा वो हम उन तक पहुंचा देते हैं। सो ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती हैं। कुछ भी इसमें सारा क्रिस्टल क्लियर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। And any specific profile, Kartik ji, which you're looking, जो भी आपसे पार्टनर करना चाहते हैं, अगर मैं दोनों की बात करूं, for somebody who wants to become a dealer and somebody who wants to become a CNF agent, so if you want to discuss on the profile also, क्या profile है जो ideally होनी चाहिए, because a lot of people might not come with the auto background, well somebody who comes with an auto background is an added advantage for them to understand and maybe have a quicker market penetration. But are there any specific, I would say, profiling which is necessary for somebody to partner? So ये partner should have knowledge of automobile selling की RTO कैसे पास होता है, फाइनेंस कैसे होता है, and he should have knowledge of electrical background से होना चाहिए वो, कि उनको पता हो कि ये सारी चीजें प्रमोट कैसे करनी है, अच्छी चीजें क्या, बेसिकली यही दो चीजें हैं जो कि हम मिनिमम हम कंसिडर करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर में। Right. Kartik ji, staying on the slide आपने, because initial जो हम business model हम predict कर रहे हैं या market में जो partners हम देख रहे हैं, which is broadly for a retail showroom for the electric vehicle, which is 3 e-rickshaws, and आपने second phase में जो नहीं किया वो, which is also vehicle rental service, battery swapping stations and EV charging stations. So is that something also which will come under franchisee in maybe phase 2 or subsequently, या ये अभी हम नहीं दे रहे हैं as a part of the business model to a partner? And these are the services which we are providing to our dealers. Suppose एक dealer है जिनके nearest location में एक charging station लगाने का option है, so हाँ dealer जी। हमसे connect करता है, हम एक हमारे काफी सारे vendors हैं जो कि charging station, solar panels and swapping system में deal करते हैं। So हम उस dealer को एक अच्छा package देके हम डायरेक्ट कनेक्ट करवा देते हैं चार्जिंग स्टेशन वाली टीम से या फिर बैटरी स्वैपिंग सिस्टम वाली टीम से। सो हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। इवन कोई आगरा में जैसे प्रोजेक्ट आया था सोलर पैनल्स प्लस लिथियम बैटरी डिप्लॉय करने का, हाँ तो जी। हमने अपने वेंडर्स को कनेक्ट करके वो टेंडर्स हमने करवाया था, और ये आगरा में हमने फिर ये सारी चीजें डिप्लॉय करवाई थी, जिसमें चार्जिंग स्टेशन भी था, सोलर पैनल्स भी थे, लिथियम बैटरीज भी थी। सो हम ऐसे हमारे कई सारे पार्टनर्स हैं जिनको हम जो हमारे पीछे काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। ओके, तो आप अभी कह रहे हैं जो हमारा करंट मॉडल है वो प्राइमरीली रिटेल शोरूम का है, जहाँ पे आपका सेल्स है, स्पेयर है, सर्विस है, और ये जो बाकी सर्विसेज हैं व्हिच आर सर्विस स्टेशन, स्वैपिंग स्टेशंस, रेंटल सर्विसेज हैं, व्हिच कैन आल्सो बी ऑफर्ड टू अ फ्रेंचाइजी प्रोवाइडेड ही वांट्स, एंड दिस वुड ऑब्वियसली एंटेल मे बी एन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। I'll also pick, I see a lot of questions being answered and some are still there. I'll pick some of these questions. Okay, Kartik ji, I also have, because we are on this slide, I'm seeing questions. We have Mr. Mukund, for example, he wants to know, अगर सिर्फ किसी को charging station ही चाहिए, is that a possibility for you to partner with them?
or it comes as a complete package, you know, somebody only has a dealership, वही आगे charging stations की franchisee ले सकते हैं? No, it's a package basically. So चार्जिंग स्टेशन के लिए भी हमारे व्हीकल्स लेना जरूरी है, एंड जो डीलर्स होंगे जो हमारे व्हीकल्स में इन्वेस्ट करके एक टेरिटरी रन करेंगे, तो हम भी अपने जितने भी प्राइम वेंडर्स है वो उनसे ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो Okay, so हमारे डीलर्स के थ्रू ही आगे चलेंगे. all right. So what you're saying is exclusive charging station will not be a possibility at this time. Somebody has to become a dealer, and the other services can come along with it. Okay. And Right. Karthik ji, I like to question, you know, because your inquiries are, and these are coming from many locations outside North India. Would you want to maybe talk about कौन सी ऐसी important states या cities हैं where you wish to enter? And I will take some locations. I think we have somebody from Telangana जो तेलंगाना के लिए डीलरशिप देख रहे हैं, and I also see somebody from other locations in south of India. So if we can talk about कौन सी ऐसी important cities हैं which is a priority for you to enter? सी मैम, करंटली भी हम तेलंगाना में सप्लाई करते हैं, हमारे मोर देन 100 व्हीकल्स तेलंगाना में सप्लाई हो चुके हैं, बट स्टिल तेलंगाना बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पे अभी काफी सारे पॉइंट्स हैं आगे ओपन करने के लिए. सेम हम बैंगलोर में भी काफी सप्लाई कर सकते हैं, कर चुके हैं. बैंगलोर में हमारे 2000 से ज्यादा व्हीकल्स सेल हो चुके हैं, बैंगलोर प्लस कर्नाटका में. सो वहाँ पे भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी, कि अलग अलग पॉइंट, काफी सारी मार्केट खाली है अभी वहाँ पे. So what you're saying is आपका supply भी सारा centrally managed है. So all these markets can be leveraged by maybe a partner who can take benefit of your existing, I would say, channel, या आपका जो भी demand है वो उनके through आप cater कर सकते हैं. And I have Nasir Yusuf ji. He says, I'm from Chennai, Tamil Nadu. What is the current availability of EVs? What is your plan suggested for our state? वी कैन सप्लाई इन तमिलनाडु. उनको सब बेसिक फॉर्मेलिटी वहाँ पे करनी पड़ेगी कि ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा, एंड हम अपना एलओआई दे देंगे उनको. जैसे उनको ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाता है वो शुरू कर सकते हैं. तमिलनाडु के लिए उनको मिनिमम एक 20 यूनिट का स्टॉक लेना होगा, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन काफी कम आएगा. हाँ जी. ट्रांसपोर्टेशन कम आता है तो हम मार्जिन ज्यादा होता है, और हम एग्रेसिवली हम ऑन रोड प्राइस हम अच्छा दे पाते हैं. तो हाँ जी. Okay, and I will also take few other questions. We have Mr. Ajit. He's from our Bangalore office. He's one of our advisors and consultants. He wanted to know what is the travel range or the maximum distance the three-wheeler can travel in a single charge. Currently, it is traveling around 110 kilometers in a single charge. Okay. देखिए मेरे पास ना, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अमर लुनिया ऑल्सो. वो पूछना चाहते हैं कि अगर सिर्फ टू व्हीलर लेना चाहते हैं वो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आपके बहुत सारे मॉडल्स हैं. अभी जो आपने मॉडल आपने बताया दैट इज ओनली फॉर थ्री व्हीलर्स, एंड यू सेड इफ यू समबडी वांट्स टू डू अ कंबाइंड दे कैन टेक 30. आपका टू व्हीलर का मिनिमम इन्वेंट्री रहना चाहिए और 12 हमारा थ्री व्हीलर का इन्वेंट्री रहना चाहिए. इफ समबडी वांट्स टू डू ओनली टू व्हीलर्स, it's not any problem in that. हमें अभी भी काफी सारे डीलर्स हैं जो कि अलग से टू व्हीलर का कर रहे हैं, कुछ हैं जो कि अलग से थ्री व्हीलर का कर रहे हैं. जो मैंने 12 मिनिमम थ्री व्हीलर का एंड 20 मिनिमम टू व्हीलर्स का बताया है, वो उन डीलर्स के लिए बताया है जो कि एक स्पेसिफिक टेरिटरी हमारी दोनों सेगमेंट में हमसे, मतलब हमने टेरिटरी डिफाइन कर रखी है उनके लिए. सो उस टेरिटरी के लिए मिनिमम 12 यूनिट्स ई रिक्शा होना चाहिए, एंड मिनिमम ऑटो होना चाहिए, एंड मिनिमम 20 यूनिट्स स्कूटी होना चाहिए. ओके, सो दीस अगर वो सिर्फ, हाँ जी प्लीज गो अहेड. सॉरी. अगर वो टेरिटरी सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए वो टेरिटरी डिफाइन करेंगे अलग से. उनके शायद चाहे साथ में ही हम कोई थ्री व्हीलर्स के लिए शोरूम खोल दें, so उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके लिए. ठीक है. And I also have a question from Mr. Praveen Biradar. He says, you know, if along with dealership, he's looking to even partner with the EV charging stations, and if there's also possibility of becoming a manufacturing vendor, is there a possibility where somebody also becomes a manufacturing vendor, takes dealership, and also does the EV stations together with you? Well, that's not what we had discussed, but do you think there can be some potential partnership if a bigger partner comes in and he wants to tie up on a bigger level? मैम वी वेलकम पार्टनर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अगर कोई अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आता है तो हम सेल आउट करेंगे उसे. Okay, I'm seeing a lot of other questions also coming in.
कौन सी कार्तिक जी आपकी नेगेटिव सिटी लिस्ट कौन सी होगी जहाँ पे अभी आपको जरूरत नहीं है? बिकॉज आई अंडरस्टैंड यूपी में यू नो यू ऑलरेडी प्रेजेंट बिग टाइम, कोई ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे आपको करंट रिक्वायरमेंट नहीं होगी? मैम ऐसे तो कोई स्टेट नहीं है, So हर जगह even UP? पोटेंशियल है। ओके, एंड क्या एक इवन इन यूपी। टेरिटरी, ओके, एंड क्या एक टेरिटरी है जो हम एक पार्टनर को देते हैं? अगर हम सीएनएफ या एक मास्टर की बात करें, और अगर मैं एक डीलरशिप की भी बात करूं, तो क्या एक रेडियस है जो एक पार्टनर को दिया जाता है? मैम अभी है ना, करंट सिनेरियो में हमने मास्टर किसी को नहीं दिया है, हम सारी डीलरशिप टेक केयर कर रहे हैं, डेडिकेट मतलब हम डायरेक्ट ही टेक केयर कर रहे हैं सारी डीलरशिप्स को। अभी किसी को मास्टर नहीं दिया गया है। एंड यूपी, कानपुर, उन्नाव में ही हमारे कुछ 20,000 व्हीकल रन कर रहे हैं, ये 4-5 स्टेट में, ये 4-5 लोकेशन में ही। सो वहाँ पे भी अभी भी स्कोप है, काफी काफी पॉइंट ऐसे खाली हैं जहाँ पे हम डीलरशिप ओपन कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उनको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं कि ये आप 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का एरिया आप संभाल सकते हैं। सो वो भी ओके रहते हैं, हमारे डीलर भी ओके रहते हैं, हम भी ओके रहते हैं इसमें। Sure. So these are open, and I will take another question. That these are very typical questions which I'm seeing coming in. One of our prospective partners is asking, in order to save the transportation cost, are you open to transporting in CKD form and to do assembly at CNF agent premises? And if yes, how much space would be required? For how much quantity or how much unit they want to invest in assembly plant. See, assembly plant एक 40 units का भी होता है, 80 units का भी होता है, and 800 units का भी होता है. So कौन सी मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है वो फिर हम बताएंगे कि it's totally depend on the assembly plant and the location. Okay. And I think this would require, मतलब ये काफी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, because this is different to what is being projected. If somebody comes from relevant experience और वो बड़ी potential partnership देख रहे हैं, especially on the manufacturing side or assembling, I feel there should be a one-on-one discussion which can happen independently. Karthik ji, one more question which I'm, I see a lot of questions which are coming in. I will try and pick up as much as possible, but one question which I think Nitin ji hai, he wanted to cover very quickly, if we can summarize the entire investment area requirement and margins. We had one sheet जहाँ पे हमने पूरा area investment पूरा bifurcate करके रखा था. If quickly we can share it with our investors, and I hope Nitin ji this would be helpful for you. So this is the total area which is required, which is almost, I think, 100 square feet each of these 7 things, which includes your display area of 100, reception meeting should be about 100, cash and counter area is about 100. You need a service workshop also for about 100 square feet, pantry, washroom, and spare part display area. So this all put together is about 700 square feet of space that you require to put up. And no, it says 1900 square feet of space which you require to be put up, with the initial investment of about 19 to 20 lakhs for two-wheelers and about 20 to 23 lakhs for a three-wheeler. You all have a, I mean, the offering includes both three-wheeler as well as two-wheeler. अगर आप दोनों इकट्ठा करना चाहते हैं, आपका inventory level बढ़ जाएगा, आपका area requirement बढ़ जाएगा. But अगर आप दोनों अलग भी करना चाहते हैं, that is also a possibility. And on the right hand side, you see the entire investment against the infrastructure जो आपका interiors होगा, equipment which is required to put up stock जो हमने 13 लाख का लिया है, and 14 lakhs, between 13 to 14 lakhs is what we have taken for two-wheeler and three-wheeler. And there's additional spare part license and franchise fees which is 4 lakhs and 2 lakhs. कार्तिक जी, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, अगर कोई कंबाइंड लेता है इसमें, बिकॉज हमने दोनों की फ्रेंचाइज फीस अलग डाली हुई है, 4 लाख एंड 2 लाख हमने डाला हुआ है, समबडी टेक्स कंबाइंड, तो ये फ्रेंचाइज फीस हम कंसिडर करते हैं या ये ऐड हो जाता है? समबडी टेक्स कंबाइंड एंड ये अलग अलग नहीं लेते हैं फ्रेंचाइजी? मैम ये ऐड हो जाता है. Okay, this because in the case of three wheelers हमारे कुछ कमिटमेंट्स रहते हैं बैंक से, तो in case of NPA and ये सारी चीजें होती हैं जब, तो डीलर भी हमारे फिर उस हिसाब से सपोर्ट करने चाहिए थ्री व्हीलर्स वाले. सो थ्री व्हीलर्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हमने फ्रेंचाइज फीस ज्यादा रखी है उनकी. श्योर, हेल्पफुल. कार्तिक जी, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं. मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी. आई थिंक वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम आवर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स.
वेदर रिक्वेस्टिंग अगर आपके साथ एक 1-to-1 डिस्कशन कर पाए मे बी इन द कमिंग वीक, अगर एक दिन ऐसा हो जब आपके साथ फिक्स कर सकते हैं एंड हमारी टीम No problem, फ्रेंचाइज ma'am. इंडिया की जो टीम है जो भी आपके साथ काम कर रही है, दे विल टेक मे बी द इनिशियल 3 to 4 days टाइम, टुमारो बीइंग होली इन नॉर्थ इंडिया. So maybe I think between today and Wednesday or Thursday, we'll take time to reach out to all the investors who have come in today, and we'll try and fix up a call in the coming week. Kartik ji, any date जो आपको लगता है ये हम कर पाएंगे? Maybe first or second, अगर हम second को कर सकते हैं, No problem. Both will be fine. है ना? So आज हमारा है, we are on 28th today, so we will take maybe the next 2 working days, which is Tuesday and Wednesday. 2 दिन हम लेंगे and we will share with you time slot for all the investors and friends. जितने भी लोग हमारे दिल्ली से बाहर हैं, anyone who is in UP close to their office or maybe Delhi NCR में अगर आप हैं, they can be a physical meeting which we will help you align with the Mr. Karthik, and anybody who's outside of Delhi NCR, because I see a lot of inquiries from South, Telangana, Karnataka. We will try to line that up over a virtual Zoom call जहाँ पे आप अपनी discussions आप कर सकते हैं. So friends, kindly mark 2nd April is the date that we have fixed up for a 1-on-1 discussion. We will also put our hotline number in the chat box, which is 9717683838. That is the hotline number you can reach out to. At the same time, our teams at Franchise India will also reach out to everybody, and especially we'll prioritize all the investors who have put in their Q&A and have requested for a call. We'll reach out to you and fix up maybe a 30 to 45 minute slot with Mr. Karthik and the team. जो भी आपके questions हैं आप पूछ सकते हैं. एक मेरा request रहेगा, because a very specific typical questions for auto and EV, and I'm assuming you all might come with relevant experience. अगर आपका कोई relevant experience या current कोई dealership भी अगर आप run कर रहे हैं, please send your profile also when we fix these meetings, so our calls can be more productive. So great, Karthik ji, we had the last 45 minutes with the investors. And before we leave, I will request कोई भी एक ऐसा मैसेज है जो आप सारे इन्वेस्टर्स को या ऑडियंस को देना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में या ओवरऑल ईवी इंडस्ट्री के बारे में. Pardon? Any message that you want to give to anyone, because as we close the session, I would request if there's any message that you want to give to all the audience जो आपको live भी सुन रहे हैं and they're also part of this webinar today. Any message that you want to give to the people who are listening to you? Ma'am, future is electric and this is the right time to start. And हम जितना best part हो जाए हम वो कर रहे हैं अपना best part, and best part service देने का भी है, जो हमारी credential है उसके हिसाब से भी. So this is the only message. Okay. Thank you so much, Karthik ji. And friends, everyone who wants to even read about Jangir Motors, ये बहुत ही trusted, credible company है, and they have been operating since 1992. जो भी इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं. One of the credible companies we have, and this is first time ever they're offering a partnership. And whosoever who would want to apply, we have an application process. हमारी teams आपसे reach out करेंगी. They will also request you to sign up a qualifying document जो आप भेजेंगे हमारी teams को. And 2nd April को we'll all set up a time with Karthik ji to do 1-on-1 call और meeting. जो भी दिल्ली के आसपास रहते हैं मिलना भी चाहते हैं, we look forward to any meetings also. And बाकी हम कोशिश करेंगे हम सारी की सारी calls ले पाएं, और कोई भी अगर ऐसा time है जो हम नहीं कर पाएंगे, we will maybe even spill that on 3rd of April. So 2nd is what we want to book. पर ऐसी कोई अगर meetings है जो हम पूरे दिन में नहीं कर पाएंगे because response बहुत ज़्यादा है. I don't know how many of the calls we would be able to cover on 2nd. We'll spill that on 3rd of April also. And thank you so much, Karthik ji, for coming in. I would like to thank you, friends. Tawfiq ji, we will send you details. We have Mr. Kalappa. He wants detail of dealership. Sir, we'll send it to you. And I don't know the name. I see some phone number being logged in. आपने two-wheeler के बारे में पूछा है. We will send it across to you. While we covered everything today, but I'm sure you need more understanding. हम सारी की सारी presentations आपके साथ share करेंगे. Nazir ji, we line up your call. आप 1-to-1 करना चाहते हैं, we'll line up a call with you. So friends, we've tried and cover a lot of questions as we could, and we also have one question from the audience. What is your plan for Maharashtra and Nagpur? Okay, Mr. Rajesh ji हैं. Rajesh ji, we're open for Pan India. जैसे कार्तिक जी ने बोला, अगर आप नागपुर के लिए देखना चाहते हैं, please reach out. हमारी teams आपसे बात करेंगी. We'll fix up your call for 2nd.
So thank you once again, friends, for this overwhelming response and also all your queries. जितनी भी हम कर पाए हैं address, we have tried to do that. But since all of you are looking at a detailed discussion, हमने 2 April का time रखा है and 2 April का हमने time रखा है. We'll fix your time. Kalapa ji, we have taken a note of your phone number also. So thank you once again, friends. And we have taken, I tried to read as much I could, and we have taken your email, phone numbers, and I see Abhishek also sharing his email. So Franchise India की team आप सबसे बात करेगी, आपका call fix करेगी, and will facilitate whatever needs to be done. Thank you once again, Karthik ji, for coming in, and Thank you, Rajesh ma'am. ji, you too. Over to you, Archana. So thank you so much, Karthik, for that lovely presentation from your side. Thank you so much, team of Jangir Motors, who have done the preparation for this particular webinar. We would like to thank Sonia ma'am for sparing time and giving that suggestion. Dear friends, please do reach out to us at our business hotline number, which we have shared in chat box also. The number is 9717683838. You can save this number in your phone book because we are flashing regular updates about different opportunity. Same can be received from you if you save this number through broadcast messages. You can also connect with us at different social handles. Information on your screen. Your each and every feedback and suggestions would be valuable to us and we'll work towards it. Please do connect with us at our Facebook page also. We are available at the Franchise India Brands Limited Facebook page. The recorded version of previously done webinars, they're available in the video section. You can also share your viewpoint with Sonia ma'am and Gaurav sir once you join them through LinkedIn IDs, information on your screen. And tomorrow, since it's Holi, we are inviting you to explore top 15 opportunities. Yes, that's the webinar we have planned for you guys. So please do registration today at same business hotline number so that you can join us tomorrow to understand top 15 futuristic brand which we are representing tomorrow. So thank you so much once again for joining in today. We wish everyone a very safe day. Thank you so much. Thank you. Thank you, friends. Bye-bye. Look forward to seeing you all tomorrow again at same time, 12 o'clock. Thank you. Thank you, Karthik ji. Thank you, Abhishek Bye. and Rajesh ji. Bye. Thank you, ma'am.